نام لیے ہیں انہیں تو کم از کم بہت ضروری ناموں میں یاد کیا جا سکتا ہے اور آپ اپنی یادداشت کا حصہ ان کو بنا سکتے ہیں۔ ان میں بھی اگر میر و غالب اور اقبال کی بات کریں تو تینوں کے رنگ غزل کی اپنی اپنی انفرادیت کے ہیں، بلکہ انہیں صاحب اسلوب شاعر کہہ سکتے ہیں۔ مرزا غالب اپنے معاصرین جہاں مومن، ذوق، صدرالدین آزردہ، شیفتہ، مجروح جیسے یا باکمال شعراء تھے، سرفہرست ہیں۔ انہوں نے اردو غزل کے دامن کو وسعت بخشی اور دامن غزل میں نئے رنگ کیسے کیسے دلکش پھول کھلائے، لہذا ان کی غزل گوئی کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے اس سے پہلے مرزا غالب کی شخصیت یا ان کی سوانح حالات کو جاننے کی کوشش کی ہے یا ان کے عہد پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس سے ہمیں یہ جاننے کو ملا ہے کہ وہ کون سا دور تھا، وہ کون سے معاصرین تھے جن کے درمیان یہ سب سے بہتر عمدہ شاعر اردو ادب کا پیدا ہوا ہے۔ اس لیے آپ کی بلاگ 2 میں غزل کے حوالے سے یہ دیا گیا ہے کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کس طریقے کے غزل کو شاعر تھے، ان میں کیا انفرادیت تھی، ان میں کیا خصوصیت تھی، اور وہ کن معنوں میں اپنے ہم عصر شعراء سے ممتاز تھے۔ وہ کون سی خصوصیت ہیں جو ان کو اپنے معاصرین سے الگ کرتا ہے، اور وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی بدولت مرزا اسد اللہ خان غالب کو آج بھی اسی شدومت سے پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ٹرانسلیشن کی بات کریں گے، اگر ہم ترجمہ کی بات کریں گے، تو غالب ایک ایسا شاعر ہے جن کو ہندوستان کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، بلکہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ جو مختلف ممالک ہیں ان کی زبانوں میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، تاکہ وہ بھی جانے کہ غالب کی دانست کیا ہے، غالب کا انٹلیکٹ کیا ہے، غالب کا موضوع کیا ہے، غالب کی فکر کیسی تھی، غالب کا فلسفہ کیسا تھا۔ یہ جو ہمارا شاعر ہے اردو ادب کا، یہ کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، یہ اپنے آپ میں ایک دبستان ہے۔ اسی لیے آج بھی کچھ ہی چند شعراء کو جو معنویت حاصل ہوئی ہے، ان چند شعراء میں ایک نام مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ اس لیے غالب ایک ایسا شاعر ہے جن کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے مطالعہ ولی یا مطالعہ میر تقی میر کہیں نہیں ہے، بلکہ اردو ادب میں اگر ہم الگ سے کسی شاعر کو پڑھتے ہیں تو وہ پہلے غالب اور بعد میں اقبال کو پڑھتے ہیں۔ اسی لیے یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں، یہ دو ایسے بڑے شاعر ہیں جن کی اردو ادب کو بہت بڑی دین ہے، یعنی انہوں نے اردو ادب میں جو میراث چھوڑی ہے، اس میراث پہ، اس راستے پہ باقی شعراء چلے ہیں، اور اسی لیے ہم الگ سے یہ پیپر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم جانیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی افادیت کیا ہے، اور جو ہم عصر دور ہیں، جو کنٹمپریری ورلڈ ہیں، آج کیا ضرورت ہے، کیوں ہم غالب کو آج بھی پڑھتے ہیں، کیوں ہم ان کی شاعری کو آج بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی شاعری کے جو دریچے ہیں، ان کی شاعری کی جو معنویت ہے، اس کے جو معنی ہیں، آج بھی ہم ان میں معنی آفرینی وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی شاعری میں کون کون سے نئے معنی پنہاں ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آج کے لیکچر کی مقصد کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرزا غالب کی غزلیں اپنے زمانے سے لے کر آج تک پوری آب و دلچسپی اور شوق کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، بلکہ گائی بھی جا رہی ہیں۔ ان کی شخصیت کے بھی کئی رنگ ہیں، لیکن یہاں اس لیکچر کا مقصد یہ ہوگا کہ غالب کی غزل گوئی پر اس طرح روشنی ڈالی جائے گی جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ غالب نے آخر کیا جادو کیا کہ اردو غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہو گیا، بلکہ اس میں مختلف نوع کے لال و جوہر بھی انہوں نے بکھیر دیے ہیں۔
कोशिश यही होगी कि गजल के आर्ट और गालिब की तख्लीकी हुनरमंदी को इनके अशार की रोशनी में समझा जाएगा। इसीलिए आज का लेक्चर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही जरूरी लेक्चर है, क्योंकि ये मकसद है कि गालिब की गजल गोई क्या है, गालिब ने उर्दू गजल को क्या दिया है, गालिब की वजह से उर्दू गजल में क्या मानवीयत आ गई है, गालिब की वजह से उर्दू अदब में कौन कौन से नए मौजूआत बरामद हुए हैं। ये गालिबी है जिसने उर्दू अदब को या खास तौर से उर्दू शायरी में उर्दू गजल को नए ढंग से, नई सोच से सोचना सिखाया है। अगर हम गालिब की गजल के रंग की बात करते हैं कि इसकी गजल गोई में कौन कौन से रंग पिन्हा हैं, तो गालिब की सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि वो किसी भी मजमून को कुछ इस तरह अंदाज से पेश करते हैं कि कारियां सामने खुद ब खुद इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। इस बात का खुद गालिब को भी एहसास था कि इनका तर्ज बयां या तर्ज इजहार दूसरे शोरा से यकसा जुदा गाना है, और अपने अंदाज बयां का फखरिया अंदाज में बयान इस तरह करते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। यानी गालिब को इस बात का बिल्कुल भी ये मालूम नहीं होता था कि मैं इस दौर का सबसे बड़ा शायर हूं। गालिब को इस बात का एहसास हो चुका था, गालिब को इस बात की खबर थी कि इस दौर का मैं सबसे बड़ा शायर हूं, क्योंकि गालिब का जो अंदाज बयां था, गालिब की जो बात को कहने का जो ढंग था, जो सलीका था, जो हुनरमंदी थी, वो बाकी शोरा से, उनके हम असर शोरा से, जिनमें हमने ऑलरेडी ज़ौक़ की बात की है, मूमिन की बात की है, शेफता की बात की है, आजुर्दा की बात की है, उन सब से गालिब जुदा गाना है, उन सब से गालिब मुख्तलिफ है। इसीलिए गालिब ये हिचकिचाते नहीं हैं कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां, और वाकई में कि इस दुनिया में बहुत सारे सुखनवर हैं, इस दुनिया में बहुत सारे शेर व शायरी करने वाले हैं, लेकिन गालिब एक ही है। गालिब का अंदाज बयां सिर्फ गालिब को है, उसका जो उसलूब है, उसकी जो स्टाइल है, ये खुद गालिब को है। बाकी शोरा में कहीं किसी को ये खूबी नजर नहीं आती है। इसीलिए वाकई में जो गालिब की जो स्टाइल है, गालिब का जो उसलूब है, गालिब की जो ये मतलब कहने की सलाहियत है, ये गालिब का जो ये तरीका है, सलीका है, अंदाज बयां है, तर्ज इजहार है, ये सिर्फ गालिब का है। बाकी शोरा को इसमें से कुछ हिस्सा मैसर नहीं हुआ। इसीलिए गालिब अपने मुआसरीन शोरा में मुमताज हैं, अपने मुआसरीन शोरा में एक बुलंद हैसियत के मालिक हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि गालिब ने साबिका शेरी रिवायत और इसके तर्ज इजहार से अपनी एक अलग राह निकाली है। यानी जो साबिका, यानी जो ऑलरेडी जो शेरी रिवायत चल रही थी, जो ऑलरेडी शेरी तर्ज चल रहा था, इससे गालिब ने एक अलग राह निकाली है, एक इनहराफ किया है। और इसीलिए गालिब ने जो रास्ता था, जो इनसे पहले शोरा ने छोड़ा था, जो वली ने छोड़ा था, जो कुली कुतुब शाह ने छोड़ा था, जो बाकी शोरा ने ऑलरेडी इनसे पहले शायरी की थी, गालिब उस तर्ज की शायरी पसंद नहीं करते थे। गालिब ने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया है, बल्कि गालिब ने अपना रास्ता आप निकाला है, अपना रास्ता अलग निकाला है। इसीलिए गालिब आज भी उर्दू अदब की शायरी पर, बिलखुसूस उर्दू गजल पर आज भी गालिब नजर आते हैं। नई बात कहना, और वो भी नए अंदाज से कि लोग सुने भी और उसकी दाद भी दें, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन गालिब ये बात कह गए हैं कि गालिब जो कहते हैं उसकी बराए रास्त असर
इंसान के दिल पे पड़ता है। गालिब के पहले और दूसरे दौर की शायरी में एक तरह की आहुर्द वाली और फारसी ज़दगी वाली फजा नजर आती है, लेकिन तीसरे दौर में आकर इनका इनफरादी रंग निखर जाता है। अगर हम इस नुक्ते पे बात करने की कोशिश करेंगे कि गालिब की जो पहली शायरी थी, गालिब की जो बुनियादी शायरी थी, या पहले दौर की शायरी या दूसरे दौर की शायरी, उसमें फारसियत का गलबा था, उसमें आउर्द का गलबा था, लेकिन गालिब ने कुछ दोस्तों की बदौलत, कुछ रिश्तेदारों की बदौलत, कुछ हम असरों की राय को मद्देनजर रखकर अपनी शायरी की जो वो स्टाइल है उसको चेंज करने की कोशिश की है। अपने शायरी का जो तर्ज है उसको थोड़ा तब्दील करने की कोशिश की है, ताकि गालिब की शायरी में फारसियत का गलबा नजर नहीं आया। इसीलिए गालिब ने अपना जो दीवान है उर्दू का वो अलग किया। इसीलिए क्योंकि गालिब सिर्फ और सिर्फ ये जाने कि मैं उर्दू में किस तरीके की वो शायरी करूं जिसमें मुझे अपनी इनफरादियत हासिल हो। इसलिए गालिब ने अपना जो कलाम है, खास तौर से जो दीवानी, गालिब में जितनी भी गजलें हैं उनको गालिब ने दीवान से छांट छांट कर अलग किया, और एक मुख्तसर सा दीवान गालिब ने कुछ ही गजलों का इंतखाब किया, उनको तरतीब दिया। और ये सबसे बेहतर चीज मेरी जहन में ये बात आ गई है कि इससे बड़ा गालिब की जिंदगी में और क्या हो सकता था कि गालिब ने अपनी जिंदगी में 5 बार अपने दीवान को पब्लिश कराया, शाया कराया। पहले गालिब ने 42, उसके बाद 60, 62, 63, 67, यानी इसका मतलब है कि गालिब ने अपनी जिंदगी में 5 बार अपना दीवान मुरतब किया और उसमें नजरसानी की है और उसको तरतीब दिया है, और इस दीवान को लोगों ने हाथों हाथ लिया है। इससे बढ़कर एक शायर की मानवियत, एक शायर की इज्जत, एक शायर की तहदारी, एक शायर की बुलंदी और अजमत की क्या बात हो सकती है कि उसका दीवान, उसकी शायरी 5 बार उसकी जिंदगी में ही पब्लिश हो गई थी। इसीलिए गालिब की जो शायरी है, गालिब की शायरी में जो फलसफा है, गालिब की शायरी में जो मौजूवाती तनव्वु हमें देखने को मिलता है, वो साबिका शोरा के यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इसलिए गालिब अपने हमअसर शोरा में एक इनफरादियत रखते हैं। ये गालिब का सबसे मेन पॉइंट था, बुनियादी नुक्ता था कि गालिब ने जो रिवायत की शायरी की, इससे इनहिराफ किया है, उसको इन्हिदाम किया है और नई तामीर, नई शायरी पेश करने की कोशिश की है गालिब ने। और ये गालिब की एक इंपॉर्टेंस है, एक गालिब की एक मानवियत है। असल में इसका जो बैकग्राउंड है वो गालिब को मालूम था कि जिस दौर में गालिब ने अपना शऊर, यानी जिस दौर में गालिब ने अपना शऊर ढूंढने की कोशिश की है, अपनी शायरी को मतलब एक नए रंग से देखने की कोशिश की है, असल में वो 19वीं सदी में एक ऐसा दौर था जिसमें बहुत सारी तगय्युरात, तब्दीलियां रूनुमा हुई थी। खास तौर से लिटरेचर के हवाले से, अदब के हवाले से मगरिब में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी थी। इसलिए गालिब को ये अंधिया था, गालिब को ये शक हुआ था कि अगर मुझे बहुत देर तक उर्दू अदब में जिंदा रहना है तो मुझे जो साबिका शेरी रिवायत है उससे मुझे इन्हिराफ करना है, मुझे नए ढंग से, नए रंग की शायरी करनी है, ताकि तादेर मुझे लोग पढ़े, कारी मिल जाए, रीडर मुझे हाथों हाथ है। इसीलिए गालिब ने ये जो रास्ता चुना है, ये नादानिस्ता तौर पर नहीं बल्कि दानिस्ता तौर पर, यानी इसने इसको शौर्य तौर पर यह समझा कि मुझे आखिर किस रास्ते से गुजरना है ताकि मैं ये जो रास्ता चुनूं
इस रास्ते के बदौलत मैं उर्दू अदब पर छाया रहूंगा। इसीलिए गालिब की जो गजल गोई का जो रंग है, ये नया रंग है, इसमें नई नई चीजें हैं जो इनके साबिका शायरों के यहाँ देखने को नहीं मिलती। अगर हम गालिब की गजल गोई की खुसूसियात की बात करेंगे कि गालिब की गजल गोई में क्या खुसूसियत है जो उनके मुआसरीन में नहीं है, और वो कौन सी चीजें हैं जो गालिब को अपने कंटेम्पररी शोरा में अलग करती है, तो सुनिए। गालिब को फारसी उर्दू दोनों जुबानों पर कुदरत हासिल थी। मैं उस वक्त जो उर्दू अदब में या उर्दू लिटरेचर में उस वक्त जिन दो जुबानों का दबदबा था, अदब में जिन दो जुबानों को गौर से पढ़ा जाता था, वो थी दो जुबानें, एक फारसी, उसके बाद उर्दू जुबान। और इन दोनों जुबानों पर गालिब को एक खासी कुदरत हासिल थी। कुदरत में एक पकड़ हासिल थी। इन्हें उर्दू से ज्यादा अपनी फारसी दानी पर फख्र था। इन्हें गालिब को मालूम था कि मेरी जो फलसफियाना शायरी है, मेरी जो मतलब मौजुआती तनव्वु है, वो मेरी फारसी शायरी में छुपी हुई हैं। इसलिए गालिब को अपनी फारसी दानी पर फख्र था कि मैंने फारसी में बहुत बड़ी अच्छी शायरी अंजाम दी है। उन्होंने कभी अपनी फारसी शायरी पर नाज करते हुए उर्दू शायरी को बेरंग दामन बेरंग मन अस्त कहा, तो कभी उर्दू शायरी को रक्श फारसी करार दिया है। इब्तिदा में वो फारसी शायरी बेदल की पैरवी करते हैं। यानी इसका मानना यह है कि गालिब को अपनी फारसी दानी पर फख्र था, गालिब को उर्दू शायरी पर नाज था, और गालिब को एक शायर जो फारसी में गुजरा था इनसे पहले, जिनको गालिब अपना उस्ताद, मानवी उस्ताद तस्लीम करता था, जिनका नाम था बेदल। इसीलिए गालिब एक जगह कहते हैं, तर्ज बेदल में रेखता कहना असदुल्ला खान कयामत है। इसमें लफ्ज है रेखता। आप कहेंगे कि ये रेखता क्या है, तो समझ लीजिए कि ये रेखता उर्दू का पुराना नाम है। उर्दू को बहुत नामों से याद किया जाता है, कभी इसको हिंदवी, कभी इसको गुजराती, कभी इसको उर्दू ये मौला, कभी इसको रेखता का नाम पड़ा है। तो ये रेखता भी उर्दू का एक नाम है। जैसे रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। इसका मतलब ये है कि ये जो लफ्ज यहां रेखता इस्तेमाल हुआ है, ये उर्दू का पुराना नाम है। अगर आप आज की जिस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में अगर आप गूगल में इंग्लिश में या उर्दू में रेखता.com लिखेंगे, तो वहां उर्दू की एक वेबसाइट है जिसमें उर्दू के हवाले से लाखों किताबें डिजिटाइज किए गए हैं, ताकि इनको रीडर बआसानी वहां ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और इसमें खासतौर से बहुत सारे शोरा का कलाम भी महफूज किया गया है, और ये इस दौर का तकाजा है, क्योंकि इस तकाजे से अगर जुबान पीछे रह जाएगी तो जुबान मर जाएगी। इसलिए जुबान को इस टेक्नोलॉजी का, इस साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। गालिब की, जहां तक गालिब की इब्तिदाई शायरी में फारसियत का ताल्लुक है, इसमें फारसियत गालिब थी। गालिब को मुहम्मिल गो शायर कहकर मुशायरों में पुकारते थे। इसी बिना पर गालिब ने एक बार कहा था, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में माने न सही। यानी गालिब को मालूम हो चुका था कि मुझे सताइश की तमन्ना नहीं है, मुझे मशहूर होने की तमन्ना नहीं है, मुझे सिला मिलने की परवाह नहीं है, गर नहीं मेरे अशार में माने न सही। यानी अगर आपको मेरे अशार में माने नहीं देखने पड़ते हैं, माने नजर नहीं आते हैं, तो छोड़िए, मेरी शायरी में माने नहीं है। वो इस वजह से है कि गालिब को
یہ الزام لگایا تھا کہ آپ کی شاعری محمل گو ہے، آپ مشکل شاعر ہیں، آپ کی شاعری پسند نہیں کی جاتی ہے، آپ مشاعروں کے شاعر نہیں ہیں، آپ کی شاعری پر داد نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ غالب کی شاعری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اسی لیے غالب نے ایک بار یہ کہا تھا کہ میری شاعری جو ہے، شعر کا مفہوم ہے، میری شاعری جو ہے وہ آپ کی شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والی پیڑھی کی شاعری ہے، بلکہ یہ آنے والی پیڑھی کی شاعری ہے۔ اگر وہ میری شاعری کو سمجھ پائیں گے اس وقت تو میں کامیاب ہوں، کیونکہ یہ جو میری شاعری ہے، آپ اپنی عقل کے دوڑے جہاں تک دوڑانا چاہیں گے ان گوڑوں کو دوڑا، میری شاعری آپ کی بس کی بات نہیں ہے، مدعا ان کا ہے میرے عالم میں تقریر کا، بلکہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں مشکل گوئی ہے، اس میں معنی چھپے ہوئے ہیں، اس میں ابہام ہے، اس میں استعارات ہیں، اس میں تشبیہات ہیں، اسی لیے میری شاعری آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن بعد میں ان کے قریبی احباب نے غالب کو اس مشکل پسندی سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے، یعنی جو ان کے قریبی احباب تھے، جو ان کے قریبی دوست تھے، رشتہ دار تھے، ان لوگوں نے غالب کو ایک مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی شاعری کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو محمل گوئی چھوڑ کر آسان اور سادہ اشعار میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانی ہے، تب جا کے آپ لوگوں کے دلوں میں بس کر سکتے ہیں، اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد غالب نے جو شاعری کی ہے اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے۔ غالب نے کہا تھا، بازیچے اطفال ہیں دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہ انتظار ہوتا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جائے اگر اعتبار ہوتا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ کچھ ایسے اشعار ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ غالب کس طریقے کے شاعر تھے، غالب کس طرح شاعری لکھتے تھے، غالب کی شاعری میں یہ موڈ کیسے آیا، غالب کی شاعری میں جو چینج ہے، یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو تغیر ہے، مشکل پسندی سے غالب سہل اور آسان گوئی کی طرف کس طرح گامزن ہوئے ہیں، اور یہ غالب ہی تھا جس نے ایسے آسان اور سادہ اشعار کہے ہیں۔ ایک اور خصوصیت اگر ہم دیکھیں گے تو غالب کو الفاظ کے انتخاب، مصروں کے در و بست، انسانی جذبات کا جو ادراک تھا یہ غالب کو زبردست تھا، یعنی غالب کو معلوم تھا کہ یہ جو کولرج نے کہا ہے کہ بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شاعری کا نام ہے، تو غالب نے واقعی میں بہترین الفاظ کو نگینے کی طرح چن چن کر اس میں لگانے کی کوشش کی ہے۔ مصروں کی جو در و بست ہیں، مصروں کی جو سیکوینس ہے جو غالب کی شاعری میں ہے وہ بہت زبردست ہے۔ انسانی جذبات کا جو احساس غالب کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے، جو ادراک ہے غالب کو، جو معلوم ہے غالب کو کہ انسان کا نفس کیا چاہتا ہے، انسان کی نفسیات کیا ہے، انسان کے اندر کیا جوش و ولولہ ہے، انسان کے اندر کیا دنیا چلتی ہے، ان سب پر غالب کو ایک پکڑ تھی، ایک نظر تھی۔ ہرچند کہ انہوں نے ایک بار کہا تھا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں،
गालिब शरीरे खामा नवाए सरोश है। गालिब शरीरे खामा नवाए सरोश है, यानी गालिब को मालूम था शायद ये जो मेरे ख्यालात हैं, ये जो मेरे मजामीन हैं, ये गैब से शायद आते हैं। इसलिए गालिब ने कहा गालिब शरीरे खामा, शरीरे खामा मीन्स कलम की आवाज, खामा मीन्स कलम, शरीर मीन्स कलम के चलने की आवाज। अरे ये जो आप कलम की चलने की आवाज सुनते हो, ये नवाई सरोश, नवा मीन्स आवाज, सरोश एक इंसान की आवाज है, ये मेरी आवाज है जो आप तक पहुंच रही है। गालिब अल्फाज की मिजाज शिनास थे, इनका दावा बेजा नहीं है। गंजीने माने का तिलस्म इसको समझे, जो अल्फाज की गालिब मेरे अशार में आवे, ने जो ये गंजीने माने का तिलस्म, यानी ये जो मेरे अशार में जो माने हैं, ये जो मेरे अशार हैं, ये जो मेरी लफ्जियात हैं, ये जो मेरा डिक्शन है, इसमें गंजीने माने, माने के खजाने हैं, इसके तिलस्म में जादू है, ये जादू से भरे हुए मेरे अशार हैं। जहां चाहे आप इनको प्रमोट कर सकते हैं, इस अशार को आप कहीं पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहीं पर फिट कर सकते हैं। इसलिए गालिब की जो शायरी है इसमें मानवियत है, इसमें तहदारी है, और गालिब एक ऐसा शायर है जिनका कलाम हम किसी महफिल, किसी जगह बासानी पढ़ सकते हैं, क्योंकि गालिब की शायरी में जो माने की तहदारी है, जो गंजीने माने हैं, जो माने की तकसीरियत है, वो इनके बाद के शोरा या इनसे पहले के शोरा में नजर नहीं आती। इस सिलसिले में अगर हम गालिब के दीवान का पहला शेर देखने की कोशिश करेंगे, जो मैं आपसे बार बार शेयर करता हूं कि नक्श फरियादी है किसकी, शोखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। काओ कावे सख्त जाने हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना जोई शीर का। बस की हूं गालिब सीरी मैं भी आतश जेर पा, मुए आतश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। आग ही दामे शनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है मेरे आलमे तकरीर का। यानी इस गजल की अगर हम मानवीयत देखने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसमें माने की तकसीरियत जानने की कोशिश करेंगे, तो वाकई में गालिब की जो शायरी है इसमें तहदारी है, इसमें मानवीयत है, इसमें माने के जो तिलस्म हैं वो टूटते हुए नजर आते हैं, इसमें जो गंजीने माने के तिलस्म हैं वो सामने आ जाते हैं। इसीलिए गालिब का हर एक शेर एक बेहतरीन किताब की सूरत में सामने आ सकती है। अगर हम शम्स रहमान फारूकी की मारूफ किताब तफहीम गालिब की बात करेंगे, तो उन्होंने गालिब की शायरी की जो तफहीम पेश की है, उसकी तशरीह पेश की है, तो वो उसमें लिखते हैं कि मैंने भी गालिब के साथ इंसाफ नहीं किया है, क्योंकि गालिब की जो शायरी है, गालिब का जो इंटेलेक्ट था, गालिब की जो नजर थी, गालिब की जो साख्त थी, इसको जो हैयत पकड़ थी, इसको जो शायरी की जो रमूज अवकाफ आते थे, को जो शायरी के जो रमज थे, इनसे गालिब बखूबी वाकिफ था। इसलिए गालिब की जो शायरी में जो तहदारी है वो इनको एक बुलंद पाया शायर की हैसियत अता करता है। एक और चीज है जो यहां पे आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा कि गालिब के हवाले से मुख्तलिफ शोरा, मुख्तलिफ उदबा, मुख्तलिफ नाकिदीन, मुख्तलिफ मौकिकीन ने अपनी आरा या ख्यालात पेश किए हैं। इसमें कुछ चंद जो मुनफरिद हैं वो कुछ इस तरह से हैं। गालिब को सबसे पहले यादगार गालिब में
मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि गालिब इंसान नहीं है बल्कि हैवानी ज़रीफ है। ये ज़राफ़त के इंसान है। ये हर चीज़ में हंसी, हर चीज़ में मजाक, हर चीज़ में तमस्खर पैदा करता है। ये गालिब की शख्सियत पे ये जो मुख्तलिफ आराई पेश की हैं, ये गालिब की शख्सियत की बिना पर है। मुमताज हुसैन एक ऐसा खासा अदीब गुजरा है। उन्होंने कहा था गालिब निशात का शायर है, उम्मीद का शायर है, गालिब एहसासात का शायर है, गालिब जज्बात का शायर है। गालिब की शायरी में उम्मीद है, निशात है, खुशी है, में कहीं गम का तस्वुर नहीं। और यूसुफ हुसैन खान एक अच्छा खासा मौके गुजरा है। उन्होंने अपनी तहकीक की बदौलत कहा था कि मिर्जा गालिब पहला फलसफी शायर हैं, पहला फिलोसोफर हैं। यानी अगर हम उर्दू शायरी को परखने की कोशिश करेंगे, उसमें फलसफा देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें मिर्जा असदुल्ला खान गालिब से शुरू करना होगा, क्योंकि गालिब की गज़लों में जो फलसफियाना असास है, जो फलसफियाना फिक्र है, वो बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है। वो शायरी मशरिक अल्लामा इकबाल ने गालिब का मुकाबला, गालिब को कंपेयर गोइटे से किया है, जो मगरिब का एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, शायर था, अदीब था, उनसे गालिब का मवाजना किया है। उर्दू अदब का एक अच्छा खासा राइटर जो इंग्लिश से होते हुए उर्दू की तरफ मुंतकिल हुआ, इसका नाम है आले मोहम्मद सरूर। वो कहते हैं, माजी का रचा हुआ शऊर, हाली के पेचो खम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें, सभी कुछ मौजूद हैं गालिब की शायरी में। गालिब खुद को अंदली व गुलशन ना आफरीदा कहकर पुकारते थे। बकौले अब्दुर्रहमान बिजनूरी, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुकद्दस, दूसरी दीवानी गालिब। ये भी कहा है कि गालिब के लिए शायरी मूसीकी और मूसीकी शायरी है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या खूब लिखा है कि अगर गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, तो गज़ल का जो आबरू है, तो गालिब उर्दू गज़ल की आबरू है। उन्होंने कहा था कि गज़ल अगर उर्दू शायरी की आबरू है, तो गालिब उर्दू गज़ल की आबरू है। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो हाइपोथेसिस क्रिएट की है, उन्होंने जो कॉल कहा है कि गालिब जो है ये उर्दू गजल की आबरू है, ये उर्दू गजल की पहचान है, ये उर्दू गजल की शान है, ये उर्दू गजल की अजमत है, ये उर्दू गजल की आबरू है। कौन? मिर्जा असदुल्ला खान। इसलिए गालिब की शायरी को, गालिब की गजल गोई को हम फरामोश नहीं कर सकते हैं, गालिब की गजल गोई को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गालिब की जो शायरी है उसमें जो थीम्स हैं, उनमें जो मौजूआत हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आज तक भी हम गालिब की थीम्स को, गालिब की जो पोइटिक्स हैं, शेरियात हैं, उसको भी हम आज तक भी समझ नहीं पाए। इसलिए आले अहमद सरूर ने क्या खूब कहा है, गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की शायरी थी। गालिब से पहले अगर हम उर्दू शायरी का बगौर मुताला करते हैं, उर्दू शायरी का अमीक मुताला करते हैं, उर्दू शायरी का थॉरोली मुताला करते हैं, तो हमें ये नजर आता है कि उर्दू शायरी का जो गालिब मौजू है, उर्दू शायरी का जो बुनियादी मौजू है, वो था हुस्न इश्क, वो था महबूब का सरापा बयान करना, महबूब की हुस्न की तारीफ करना। नाज़की उसके लब की क्या कहे, पंखड़ी गुलाब की सी है। यानी जो मशहूर गजल है मीर तकी मीर की, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है ना। अगर हम इस गजल को या वली की गजलों को देखने की कोशिश करेंगे, तो लब की सिफत लाले बदख्शासू कहूंगा,
जादू है तेरे नैन गजा लासूं का होगा। तो इसमें जो बुनियादी मौजू है वो था महबूब का हुस्न, औरत का सरापा बयान करना। लेकिन गालिब ने ये जो गजल का जो दायरा है, गजल की जो कायनात है, गजल का जो कैनवस है, उसको वसी से वसी तर करने की कोशिश की। क्योंकि गालिब ने जो गजल में जो नए नए डायमेंशंस क्रिएट किए हैं, नए नए माने पहनाने की कोशिश की है गजल को, वो वाकई में गालिब की देन है उर्दू गजल। इसीलिए आलिया अहमद सरूर ये कहने पे मजबूर हो गया है, रशीद अहमद सिद्दीकी ये कहने पे मजबूर हो गया है, गालिब उर्दू गजल की आबरू है। और आलिया अहमद सरूर ने भी कहा है कि गजल उर्दू शायरी अगर हम देन कहेंगे तो गालिब उर्दू गजल का एक बहुत बड़ी देन है। अगर हम मिन जुमला कुछ नुक्तों पर बात करने की कोशिश करेंगे, ये हम लास्ट पे करेंगे। इससे पहले जो गालिब के नुमाइंदा अशार हैं, जो गालिब के जो नुमाइंदा शेर हैं, अगर हम उनको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको गालिब से मोहब्बत हो जाएगी, गालिब की शायरी से आपको एक उनसियत हो जाएगी कि गालिब ने आखिर पर उर्दू गजल पर क्या जादू बर्पा किया, आखिर पर उर्दू गजल पर क्या असर डाला गालिब ने उर्दू गजल पर। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। इस शेर में अगर हम इस शेर की तशरीह करने की कोशिश करेंगे, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। इसमें जो लफ्ज नमरूद हैं, ये नमरूद की तरफ इशारा है, जो एक जालिम बादशाह गुजरा था हिस्ट्री में, इसकी तरफ इशारा है। और जब हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, ऐसे तारीखी वाकयात का इस्तेमाल गजल में डालने की कोशिश करते हैं तो इस शेर को बोलते हैं तलमी, तेलाम मीम ये हाई। यानी जब किसी शेर में किसी तारीखी वाकये की तरफ इशारा किया जाए तो उस सन्नत को कहते हैं सन्नत तलमी। ये जो पोइटिक टूल है, इस पोइटिक टूल को कहते हैं सन्नत तलमी। इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, ये वो आतिश है गालिब कि लगाए से न लगे और बुझाए से न बुझे। इश्क की जो फिलॉसफी है, इश्क का जो तस्वुर है, चाहे मजाजी हो चाहे हकीकी हो, दोनों सूरतों में ये इंसान ही जानता है इश्क की कैफियत क्या होती है। ये इंसान किसी के कहने पे, किसी के सोचने पे, किसी के बोलने पे, किसी के करने पे ये सारी चीज इंसान नहीं कर दे, ये खुद ब खुद हो जाती है। इसीलिए गालिब ने कहा था, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हमने दी। निकलना खुल्द से, खुल्द मीन जन्नत। अरे मैंने सुना था कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से किस तरह से निकाला गया, लेकिन उसको भी इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा सदमा नहीं हुआ होगा जितना बड़ा दुख और सदमा आपकी कूचों से निकलकर मुझे हुआ है। देखो शेर को कहां से कहां की चीज से किस चीज को मिलाने की कोशिश की है। यह है गालिब की मानवीयत। गम अगर जान गुस्ल है, पे कहां बचपन का दिल है। गम इश्क गर न होता, गम रोजगार होता। ये जो फिलॉसफी, जो तसव्वुफ गालिब ने इस शेर में
पेश करने की कोशिश की है। गमे इश्क गर न होता, गमे रोजगार होता। अरे अगर हमें गमे इश्क नहीं होता, अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होता, प्रॉफिट का कुर्ब हासिल नहीं होता, किसी का मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होता, तो दूसरी मोहब्बत हमारे दिल में होता, दुनिया का हिर्स, दुनिया की लालच, दुनिया का बुग़्ज़, दुनिया के रोजगार के मसाइल हमारे दिल में होते। ये दो ही चीजें, दुनिया का रोजगार, एक गम इश्क, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हसद, कीना और ईमान ये एक ही दिल में नहीं रह सकता। कहां मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहां वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। यहां पे गालिब ने वाइज पर भी तनज किया है, वाइज को भी गालिब ने नहीं बख्शा है। इसमें भी गालिब ने सन्नती तलमी से काम लिया है। और एक बेहतरीन शेर है जो यहाँ पे मैं आपके सामने उसका जिक्र करना चाहूंगा। क्या किया खिज्र ने सिकंदर से, क्या किया खिज्र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। क्या किया खिज्र ने सिकंदर से, यहां पर भी सन्नत तलमी है। इन्हें आपको मालूम नहीं है सिकंदर अलैहिस्सलाम ने खिज्र से क्या किया, यानी खिज्र अलैहिस्सलाम ने सिकंदर से क्या किया, आपको मालूम नहीं है। जब खिज्र ने सिकंदर के साथ धोखा किया तो हम किस खेत की मूली हैं, अब मैं किसको अपना रहबर, अब मैं किसको अपना हमदम बनाऊं। यानी अगर हम इन अशार को मद्देनजर रखकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि गालिब की मानवियत क्या है, गालिब की इफादियत क्या है, गालिब ने किस तरह की शायरी की है, तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आखिर पे हम गालिब की कुछ पॉइंट्स में इनफिरादियत ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक पॉइंट यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम लास्ट पॉइंट है रिवायत से बगावत या रिवायत से इनहिराफ। ये आसानी के लिए कि किस तरह से आप गालिब की इनफिरादियत, गालिब की खुसूसियत को आप याद रखेंगे। सबसे जो बुनियादी पॉइंट है वो आप याद रखेंगे कि रिवायत से इनहिराफ। तो भी उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे कि गालिब ने किस तरह से रिवायत से इनहिराफ किया है। रिवायत मीन्स जो शेरी रिवायत थी, जो इनसे पहले जो शायर गुजरे थे, उनकी शायरी को किस तरह से गालिब ने रद्दी का ढेर माना है, उनकी शायरी को किस तरह से गालिब ने लात मारी है और गालिब आगे निकल चुके हैं। हालांकि अगर हम देखेंगे, हम अपनी रिवायत को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुस्बत रिवायत को, गालिब को इसमें मनफी रुझान लगा। गालिब को लगा कि अगर मैं अपनी शायरी को नए तकाजों से हम आहंग मीन्स नए तकाजों से, जो नई चीजें, जो नए तजुर्बात हो रहे हैं दुनिया में, अगर मैं इनको अपनी शायरी के साथ नहीं जोड़ूं, हम आहंग नहीं करूं, तो मेरी शायरी किस काम की। मेरी शायरी और जो रिवायती शायरी है उसमें एक हद फासिल होना चाहिए, उसमें एक लकीर खींचनी चाहिए ताकि मेरी शायरी उन शायरों से अलग हो सके। इसलिए गालिब ने जो रिवायत थी, उस रिवायत से गालिब ने इनहिराफ किया है। गालिब ने अपनी नई इमारत तामीर करने की कोशिश की है और गालिब ने ये जानकर किया है कि मुझे अगर अकेला ही इस रास्ते से गुजरना होगा तो अकेले अकेले एक बीट बन जाएगी। जिस तरह से एक शायर ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर,
लोग आते गए और कारवां बनता गया। जब कोई इंसान किसी राह पर अकेले चलता है, मुसम्मम इरादे के साथ चलता है, खुलूस नीयत के साथ चलता है, उसके दिल में मुकम्मल इरादा होता है, तो इसके पीछे, उस इंसान के पीछे एक कतार लग जाती है, लाइन लग जाती है, बीट बन जाती है। और यही गालिब के साथ हुआ। गालिब बुज़ात खुद एक अकेला चलने वाला शायर था, एक अकेला चलने वाला राहगीर था, मुसाफिर था, लेकिन आगे पीछे चलते चलते एक कारवां बनता गया। इसलिए गालिब ने जो किया है, गालिब का जो बुनियादी नुक्ता था, गालिब ने पहले रिवायत से इनराग किया है, उसके बाद गालिब ने अपनी शायरी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। दूसरा मौजू जो गालिब को अपने कंटेम्प्रेरी शायरों से अलग करता है, या गालिब की जो इनफरादियत है, खुसूसियत है, अहमियत है, वो है गालिब के मौजूआत में रंगारंगी है। गालिब के मौजूआत में तनव्वु है, रंगारंगी है, क्योंकि गालिब का जो मौजू है उर्दू गजल का, वो रिवायत से मुख्तलिफ है। वो पीछे जो रिवायत छोड़ी थी शायरों ने, उनसे मुख्तलिफ है। गालिब ने बहुत सारी शायरों के दीवान को अपने पास बुलाया, बिठाया, और फिर वो दीवान पढ़ कर गालिब को लगा क्या वो कौन सा मौजू है जिस मौजू की तरफ इन लोगों की नजर नहीं गई, और उस मौजू पर गालिब ने लब कुशाई करने की कोशिश की। इस तरह से गालिब ने जो पिछली वाली रिवायत है उसको इनराफ किया। इसलिए गालिब की जो शायरी में जो मौजूआती तनावु देखने को मिलता है, कि मौजूआती रंगारंगी है, कि गालिब की जो शायरी है इसमें जो मौजूआत थीम्स है वो नए नए हैं। और अगर हम गालिब की किसी भी गजल का डिकॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, रद्द तश्कील करने की कोशिश करेंगे, या इसको माने पहनाने की कोशिश करेंगे, तो गालिब की शायरी के जो माने हैं वो बहुत ज्यादा है। हर एक शेर को 10-10, 20-20 माने में हम पेश कर सकते हैं। और जितनी बार हम गालिब की रीडिंग करेंगे, उतनी बार हमको ये एहसास होगा कि एवरी रीडिंग इज मिसरीडिंग। जितनी बार हम गालिब को पढ़ेंगे, हमें ये एहसास होगा कि गालिब की जो शायरी है, कहीं ना कहीं हमने कुछ पॉइंट्स को पीछे कर दिया। इसलिए गालिब की जो शायरी है इसमें रंगारंगी है, इसमें तनव्वु है, इसमें मौजूआती दिलकशी है, इसमें मौजूआती तब्दीलियां हमें देखने को मिलती है। एक और पॉइंट है, एक और इनफिरादियत है जो गालिब को अपने हम असर शोरा में अलग कर देता है, वो है गालिब की तहदारी। गालिब की जो शायरी में जो तहदारी है, तहदारी मीन्स कि मानवियत की तहदारी, तहदारी मीन्स कि मेटाफर की तहदारी, तहदारी मीन्स सिमिली तशबिया की। मेटाफर या तशबिया सिमिली को छोड़कर अगर हम इबहाम की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो गालिब की शायरी में हमें इबहाम भी देखने को मिलता है। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, संग हो या खिश्तो संग, दिल हो या खिश्तो संग, दर्द से बर आए न क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। यानी गालिब की जो शायरी में जो तहदारी है, गालिब की जो शायरी में जो मानवियत की खुसूसियत है, ये गालिब की शायरी का एक बुनियादी मौजू है। आप समझ लीजिए कि गालिब का कोई भी शेर उठा लीजिए, इसमें जो मानवीयती तहदारी है, माने पिन्हा छुपे हुए हैं, ये किसी शायर के यहां आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये गालिब की खुसूसियत है, ये गालिब की मानवियत है, ये गालिब की अजमत है कि ये बाकी तमाम शायरों में मुनफरिद है। एक और खुसूसियत है जो गालिब की बुनियादी खुसूसियत है, जिस पे हम बात करेंगे, कि वो है जिद्दत। जिद्दत मीन्स मॉडर्निटी, जिद्दत मीन्स नयापन,
जिद्दत मीन्स कि जो गुजर चुका है, जो लोगों ने कहा है उसके खिलाफ उससे आगे सोचना। आप समझे, आप कहेंगे सर ऐसा क्या, गालिब ने क्या नया सोचा है, क्या नया किया है? तो समझ लीजिए कि गालिब ने हर पॉइंट पे, हर नुक्ते पे गालिब ने नया सोचा है, नया समझा है, नया लिखा है, नया किया है। क्यों? कि गालिब की जो शायरी की जो ये शायरी का जो कैनवस है, उसका जो दायरा है, उसकी जो दुनिया है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है, गालिब की शायरी का जो जुरिस्डिक्शन है, उसका जो कैनवस है, ये महदूद नहीं है बल्कि ये मुंतहाई नजर है, लामहदूद है। कि गालिब ने जब अपने दीवान को कंपाइल किया है तो उसमें कहीं मनकबत नहीं है, उसमें कहीं नात नहीं है, उसमें कहीं हमद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि गालिब ने यहां पर भी नएपन से, जिद्दत से काम किया। अगर आप जिद्दत के माने समझेंगे तो जो नया मीन्स जो हमने आज किया ये कल से नया है, जो हम कल करेंगे ये आज से नया होगा। इसका मतलब ये है जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, ये पुराना है, रिवायत है। तो इसलिए ये जो हिस्ट्री हमने क्रिएट की थी कि सिर्फ हम महबूब का सरापा, महबूब का हुस्न, सिर्फ हम सिमिली, सिर्फ हम मेटाफर का इस्तेमाल करेंगे, तो गालिब ने इस रिवायत को ब्रेक किया है, इस रिवायत को तोड़ डाला है। इसलिए गालिब की जो शायरी में जो जिद्दत है, जो नयापन का एहसास है, ये सिर्फ और सिर्फ गालिब की शायरी में। इसलिए अगर हम देखेंगे कि गालिब की शायरी की जो मानवियत है, ये सबसे बुनियादी नुक्ता है कि गालिब की शायरी में जिद्दत पसंदी है। मुश्किल पसंदी की हमने ऑलरेडी बात की है। अब यहाँ एक पॉइंट रहा तसव्वुफ। तो गालिब की शायरी में उस तरीके का तसव्वुफ नहीं था जिस तरीके का तसव्वुफ दर्द की शायरी में मिलता है। गालिब ने पहले ऐसे एतराफ किया था, ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादहार होता, ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इन्हें गालिब को एहसास हो चुका था कि मैं शराबी हूं, मैं शराब पीता हूं, इसलिए मुझे तसव्वुफ से, मुझे वहदानियत से कोई सरोकार नहीं है। और जब हम गालिब को मुआसरीन से अलग करते हैं तो गालिब का जो चलने का ढंग था, खाने का ढंग था, पहनने का ढंग था, बात करने का ढंग था, और गालिब की जो खुतूत निगारी है, ये भी एक पहलू है जो इसको अपने मुआसरीन से अलग कर देता है। इसका मतलब यह है कि आज लेक्चर में हमने एक ऐसी चीज पे लबकुशाई की है कि गालिब की गजल गोई। अगर हम इसको मिन जुमला पेश करने की कोशिश करेंगे कि गालिब की गजल गोई की अहमियत क्या है, गालिब किस तरह से अपने मुआसरीन शोरा में इनफिरादियत के हामिल हैं, तो आपको याद रखना है कि गालिब का जो अहद है ये मुनफरिद था। गालिब जिन शायरों के बीच बड़ा हुआ वो भी उनमें उस दौर में मुनफरिद थे, चाहे ज़ोक था, चाहे मोमिन था, चाहे शेफ्ता था, चाहे सदरुद्दीन आरज़ू था। एक और पॉइंट ये है कि अगर हम गालिब की शख्सियत पर बात करते करते ये न देखेंगे कि गालिब का जो दीवान है वो 5 बार इनकी जिंदगी में पब्लिश हो चुका है। इसीलिए ये एक शायर की खुसूसियत ये है, गालिब एक शायर की कामयाबी का राज ये भी है कि उनका दीवान उनकी जिंदगी में 5 मर्तबा पब्लिश हुआ है, मंजर आम पर आया है, शाया हो चुका है। इसलिए इनकी ये जो रिवायत है गालिब की, ये रिवायत फिर आगे बढ़ती गई
اور آج تک اس روایت میں ہزاروں شاعروں نے اسی زمین پہ اپنے پودے لگانے کی کوشش کی ہے۔ اور غالب کی جو غزل گوئی کے جو رنگ ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس میں کہیں ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس موضوع پر غالب نے شعر نہیں کہا ہے۔ غالب نے دنیا کے منفرد موضوع پر، دنیا کے بہترین موضوعات پر اپنی اشعار باندھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ غالب کی خصوصیت ہے کہ جہاں پر بھی ہم ان کی شاعری کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ان کی شاعری فٹ بیٹھتی ہے۔ اور اگر ہم غالب کی خصوصیت کی بات کرتے ہیں، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ غالب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں زبانوں پر دسترس حاصل رکھتے ہیں۔ اردو زبان کے ساتھ ساتھ ان کو فارسی پر بھی دسترس تھی، بلکہ ان کو عربی لینگویج پر بھی خاصی دسترس حاصل تھی۔ یہ سبق ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ یوں ہی کوئی شاعر نہیں بنتا، یوں ہی کوئی غالب نہیں بنتا، کہ اس کے پیچھے دلیل ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے۔ اسی لیے غالب جو ہیں ان کا جو الفاظ کا جو انتخاب تھا، مصروں کا جو جو سٹائل تھی، جو دربست تھی، وہ الگ تھی۔ اس لیے انہوں نے جو بھی لفظ تعمیر کیا، جو بھی لفظ پیش کیا اردو شاعری میں، وہ ان کی مثال آپ ہیں۔ اگر ہم ان کو چینج کرنے کی کوشش آج بھی کرتے ہیں بقول شمس الرحمن فاروقی، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو لفظ غالب نے یہاں پیش کیا ہے وہی لفظ بہتر ہیں۔ کسی صورت میں بھی غالب کی شاعری میں ایسے عیب نہیں ہے کہ جن کو اچھالنے کی کوشش کریں گے، بلکہ غالب کو اردو شاعری کے فن پر، اردو غزل کے فن پر ایک بہت بڑی دسترس حاصل تھی ہے۔ ایک بہت بڑا جو پوائنٹ آف ویو تھا غالب کا، یہ تھا کہ غالب نے اردو شاعری کو دل والوں کی شاعری سے نکال دیا ہے۔ غالب نے اردو شاعری کو محبوب کے سراپوں سے، محبوب کے دامن سے نچوڑنے کی کوشش کی ہے، اور دنیا کے نئے نئے موضوعات پہنانے کی کوشش کی ہے۔ غالب نے محبوب کی گلیوں سے غزل کو نکل کر ہوائے کھلی ہوا میں، کھلی فضا میں سوچنا سکھایا ہے۔ کس طرح سے غالب کی معنویت ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اس لیکچر میں یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ غالب کی غزل گوئی کے وہ کون سے پہلو ہیں جن کی بدولت غزل میں آج بھی غالب اردو غزل پر ایک اچھا خاصا نام ہے، اور کیوں ہم غالب کو الگ سے پڑھتے ہیں، اور یہی خصوصیات ہیں جن کی بدولت پر ہم غالب کو الگ سے پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ناظرین، آج کے لیکچر کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، تو جب تک کے لیے